ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ گاؤں کی ایک عورت ایسی تھی جو صرف بیٹے جنتی تھی، لیکن بیٹے کی پیدائش کے 2 دن بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا۔ یوں اب کوئی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر گاؤں کے سارے مردوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا اور پھر اسی رات عورت سے اجتماعی۔ میرا نام ثنا ہے، میں ایک دور دراز گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ضروریات زندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت سی سہولیات میسر نہیں تھی، اس لیے کسی بھی قسم کی ایمرجنسی میں ہمیں دور شہر تک جانا پڑتا تھا۔ یہاں کے راستے بھی پکے نہیں تھے، کوئی بس یا گاڑی بھی مشکل ہی ملتی تھی۔ بس اسی باعث ہم لوگ بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار رہتے تھے۔ ہمارے گاؤں کے سربراہ ایک چودھری تھے، جن کے ظلم و ستم کی داستانیں پورے گاؤں میں گردش کرتی تھیں۔ وہ ایک بہت ہی بے رحم اور ظالم انسان تھے۔ ان کے ظلم و ستم کی داستان سے پورا گاؤں واقف تھا۔ وہ کسی پر بھی رحم نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک سب ان کے غلام تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے ایک اشارے پر لوگ ان کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں۔ ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ ان کی بیٹی بے حد مغرور اور چلاک تھی۔ اسے اپنے پیسے اور باپ کی طاقت کا بہت نشہ تھا۔ اس کا بڑا بھائی عمران بھی باپ کے ہی نقش قدم پر چل رہا تھا، اور اس کا چھوٹا بھائی باسم، وہ ان سب سے بالکل ہی الگ تھا۔ وہ شہر کی ایک بہترین یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور اس کی تعلیم کا اثر اس پر صاف دکھتا تھا۔ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بالکل ہی برعکس تھا۔ اس کا مزاج، اس کا رہن سہن، ہر چیز جدا تھی۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ انسانوں کا احترام کرنے والوں میں سے تھا۔ اس کی تربیت میں بڑا ہاتھ اس کی اماں کا تھا۔ وہ اپنے بڑے بیٹے اور اپنی بیٹی کو تو اپنی تربیت کے رنگ میں نہ رنگ سکیں، مگر اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی پرورش انہوں نے اپنی خواہش کے عین مطابق کی تھی۔ باسم اپنی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی بہت زیادہ بیمار رہنے لگا تھا، اور وہ ہر وقت اپنی ماں کے پاس رہا کرتا تھا۔ تبھی اس پر ماں کی تربیت کا بہت اثر تھا۔ وہ ان سے اٹیچ بھی بہت تھا۔ میں باسم کو بچپن سے ہی جانتی تھی۔ میرے ابا ان کے ہاں کام کرتے تھے۔ وہ چودھری صاحب کے خاص آدمیوں میں شمار ہوتے تھے۔ میرا اور باسم کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا، جس کی وجہ سے ہماری دوستی بھی بہت گہری تھی، مگر یہ دوستی اور ساتھ صرف لڑکپن تک ہی محدود رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلوں، اور پھر باسم بھی پڑھائی کے لیے شہر چلا گیا تھا۔ یوں اس دن سے ہم دور دور ہی رہتے تھے ایک دوسرے سے۔ مجھے تو اب یاد بھی نہیں رہا تھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا تھا ہمیں آپس میں بات کیے ہوئے۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی تھی کہ شاید وہ تو اب تک مجھے بھول ہی چکا ہوگا۔ شاید اسے اب یاد ہی نہ ہو کہ اس کی بچپن کی کوئی دوست بھی تھی جو یہیں قریب میں ہی رہتی تھی، جو آج بھی دل سے اسے اپنا دوست سمجھتی تھی۔ شاید وہ مجھے اب بھول ہی گیا ہوگا۔ مگر میرے گاؤں میں ویسے تو اور بہت سی سہیلیاں تھیں، مگر میں اب تک اسے نہیں بھول پائی تھی۔ میں نے اپنا پورا بچپن اس کے ساتھ ہی گزارا تھا، مگر خیر وہ بچپن تھا۔ اب تو ہماری راہیں جدا ہو چکی تھیں، مگر بہت سے لمحات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو کبھی نہیں بھولتے۔ اس کے ساتھ بیتے لمحے بھی میرے لیے ایسے ہی تھے جو میں کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ وہ اب بڑا ہو چکا تھا اور گاؤں کی کئی لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکا تھا۔ اب مجھے وہ شاذ و نادر ہی دکھتا تھا۔ جب بھی وہ شہر سے گاؤں آتا تھا تو گاؤں کے لوگوں اور حویلی میں اپنی اماں کے ساتھ ہی وقت گزارتا تھا۔ یہ اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ وہ اکثر ہی گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتا ہوا پایا جاتا۔ ہمارا گھر حویلی سے کچھ فاصلے پر ہی تھا۔ وہ جب بھی آتا تھا تو میں اماں سے چھپ چھپ کر دروازے کی اوٹ سے اسے دیکھتی تھی، اور اسے کبھی پتہ نہیں چل سکا کہ کوئی کسی دریچے سے اسے دیوانوں کی طرح دیکھتا ہے۔ کوئی ہے جو اس کی راہ میں سالوں سے آنکھیں بچھائے بیٹھا ہے، اور وہ بے خبر ہے اس سب سے۔ مجھے اسے یوں تکتے رہنا بہت پسند تھا۔ مجھے ہمیشہ انتظار رہتا تھا کہ کب وہ آئے گا اور کب میں اسے دیکھ پاؤں گی۔ میں بھی پاگل ہی تھی بالکل، جو اسے بس یوں دور دور سے ہی تکا کرتی تھی، مگر کبھی اس کے پاس جا کر اسے بات تک نہ کرتی تھی۔ شاید مجھے اس بات کا اچھے سے ادراک تھا کہ وہ میری پہنچ سے بہت دور تھا، میرا اور اس کا ساتھ ناممکن تھا، تبھی میں نے کبھی اس سے بات نہ کی تھی۔ بس ایک خاموش سی محبت تھی جو ایک لمبے عرصے سے میرے دل میں پل رہی تھی۔ خاموش محبت بھی کتنی اذیت ناک ہوتی ہے نا، مگر یہ ہمارے آس پاس رہنے والوں کو اذیت سے بچا لیتی ہے۔ ہماری پہنچ سے کچھ لوگ بہت ہی دور ہوتے ہیں، اور جانتے بوجھتے بھی
हम उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। न जाने ऐसा क्यों कर बैठते हैं अपने साथ। मैं भी जानते बूझते उसकी मोहब्बत में पड़ गई थी। नहीं जानती थी कि उसका इख्तिताम क्या होगा। क्या मैं अपनी मोहब्बत को पा लूँगी या फिर उम्र भर दिल के एक कोने से उठता दर्द महसूस करती रहूँगी। दिन यूं ही अज़ुर्दा से गुजरते रहे। मैंने गांव के स्कूल और कॉलेज से ही पढ़ा था। आगे आला तालीम का निज़ाम यहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए मुझे तालीम को खैरबाद कहना पड़ा। हालांकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, मगर ये शौक़ अब सिर्फ शौक़ ही बनकर रह गया। मैं अब घर पर ही अम्मा का हाथ बटाती थी, या जब बासिम हवेली में मौजूद नहीं होता था तो मैं हवेली में बड़ी बीबी के पास चली जाती थी। वो बासिम की अम्मा थीं। उन्हें सब बड़ी बीबी के नाम से ही पुकारते थे। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो एक बहुत ही मिलनसार खातून थी। उन्हें देखकर लगता नहीं था कि वो हवेली की मकीन है। वो इन सब से बहुत मुख्तलिफ थीं। बासिम की एक फुप्पो जो अपनी जवानी में ही बेवा हो गई थी, वो इसी हवेली में रहती थी और उनका रोबो दबदबा पूरी हवेली पर छाया रहता था। वो भी अपने भाई की तरह एक जालिम और मक्कार औरत थी। बासिम की बहन भी इन्हीं के रंग में रंगी हुई थी। वो किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। मुझे वो कभी पसंद नहीं आई थी, ना ही उनका रवैया मेरे साथ ठीक था। वो बहुत ही हित्ता कमीज लहजे में बात करती थी, हर एक को अपने जूते की नोक पर रखती थी। मैं जब भी हवेली आती थी तो कोशिश करती थी और दुआ करती थी कि उनसे मेरा सामना ना हो। बस एक दिन मैं इन्हीं सोचों में उलझी हवेली के अंदरूने खाना जा रही थी, तभी अचानक किसी से जोर से टकराई थी। कुछ पल को तो मेरा सर ही चकरा कर रह गया। सामने वाला शख्स मुझसे पूछ रहा था कि तुम ठीक हो। तभी मैंने महसूस किया कि उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी। मैंने हवासों में लौटते हुए देखा तो वो बासिम था। मैं यूं ही उससे अचानक सामना होने पर घबरा गई और वहाँ से भागने लगी कि तभी उसने मेरा नाम पुकारा और कहा कि रुक जाओ। उसके मुंह से अपना नाम सुन के मैं तेज़ी से उसकी तरफ मुड़ी और उसके करीब आकर हैरत से उससे पूछा, क्या मैं तुम्हें अब भी याद हूँ? तो वो बोला, हाँ ना, क्यों नहीं। न सिर्फ याद हो बल्कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि जब भी मैं शहर से आता हूँ तो तुम छुप छुप कर मुझे अपने घर से देख रही होती हो। मैं तो ये सुनकर ही खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि उसने मुझे याद रखा था। गोया मेरे इतने सालों की यादों और आंसुओं का कोई तो फ़ायदा हुआ था ना। फिर अगले दिन जब मैं हवेली आई तो मुझे पता चला कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करके अब यहीं आ गया है। मैं अब उससे तकरीबन रोज़ ही बातचीत करने लगी। हमारे बीच दोस्ती की फ़ज़ा कायम हो रही थी। हमारी बातचीत भी कोई लंबे लंबे मुकालमों पर मुश्तमिल नहीं होती थी, बस आते जाते हालचाल पूछ लेते। मगर ये चंद पल की गुफ्तगू भी किसी की आंखों में बुरी तरह खटकने लगी थी। वो नरमीन थी, बासिम की पुप्पो की बेटी। इंतहाई नकचिड़ी लड़की थी वो। उसने जब 2-3 बार तसलसल से हमें बातचीत करते देखा आपस में, तो न जाने अपनी माँ को जाकर क्या किस्सा सुनाया कि सफाक औरत ने मेरे किरदार की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी थी। ये उन दिनों की बात है कि मैं घर पर फारिग रह रहकर थक गई तो अम्मा से बात करके करीबी स्कूल में पढ़ाने लगी थी। स्कूल की तरफ 2 रास्ते जाते थे, एक हवेली की पिछली साइड से होकर और दूसरा मेरे घर के सामने से। मगर मैं हवेली के पीछे वाली साइड से जाती थी, क्योंकि जिस वक्त मैं जाती थी उस वक्त वहाँ बासिम मौजूद होता था और चहलकदमी कर रहा होता। मैं अब तक नहीं जानती थी कि वो मेरे लिए क्या जज्बात रखता है, मगर वो मुझसे अच्छे से पेश आता था और मैं रोज़ उसे देख पाती थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे मुझे इस रास्ते से गुजरते कि एक दिन हवेली से बासिम की पुप्पो ने मुझे बुलवाया। मैं जब वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि लड़की, तुम्हारे क्या इरादे हैं? तुम क्यों हर वक्त बासिम के इर्द गिर्द मंडलाती रहती हो? तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। इसकी दौलत और ये हवेली हथियाना चाहती हो ना, तो याद रखना मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। फिर उन्होंने अपनी जुबान के नश्तर उगलने कई घंटों तक जारी रखे। करीबी नरमीन मज़े ले लेके ये सब सुन रही थी। इस पल मुझे इतनी जिल्लत महसूस हुई कि दिल किया कि ज़मीन में गड़ जाऊं। न जाने किस किस्म की औरत थी ये, इसके सीने में दिल नहीं था क्या? इस दिन वहाँ से वापसी पर मेरा दिल टुकड़ों में बट गया था। मैंने सोच लिया था कि अब दोबारा कभी बासिम के करीब नहीं आऊँगी, मगर दिल एक ही जिद करता था। मगर मैं उसे समझा कर बासिम से कतराने लगी। उसने भी शायद मेरा गुरेज महसूस कर लिया था, मगर उसे इस सब बातों का कोई इल्म नहीं था जो उसकी पुप्पो ने कही थी। मैं जब भी उनके वो अल्फाज सोचती थी तो नफ़रत का एक एहसास मेरे अंदर तक उतर जाता। मैंने हवेली जाना छोड़ दिया था। मैंने हर उस राह पर जाना छोड़ दिया था जो बासिम की ओर जाती थी।
मगर आखिर कब तक मैं ये सब कर पाती। मोहब्बत की दासी जिस गली में धमाल डालती थी वहां से अब मेरा गुजर नहीं होता था। मैंने इन राहों पर चलना अब छोड़ दिया था जिनकी मंजिल मुझे अंधे कुएं की तरफ ले जाती थी। मैं बस सारा दिन ड्योरी से लगी गली में आने जाने वालों को तका करती थी। मेरी कहानी का एक हिस्सा खुशियों भरा था और एक हिस्सा बहुत ही दर्द भरा। हर इंसान की जिंदगी में खुशियां और गम आते हैं, मेरी जिंदगी में भी आए, मगर वो मुझे नासूदा कर गए। हवेली की जालिम दीवारों के पीछे बुनी जाने वाली साजिशों ने मुझसे मेरा सब छीन लिया। वो सिंहासन पर बैठी मगरूर औरतें जो इन दीवारों के पीछे बैठी साजिशों और मकरो फरेब के जाल बुनती थीं, उन्होंने मेरे दिल का खून कर दिया था, मुझे हिजर का मुसाफिर बना दिया था। अब मेरी आंखें बस एक नुक्ता इन जमात पर ठहर सी गई थीं। मेरी याददाश्त के दरीचों पर सिर्फ एक शख्स का चेहरा था, एक शख्स का नाम था बासिम का। वो अब भी बेशक बेखबर था, मगर भिनक तो उसे कहीं न कहीं से मिल ही गई होगी। क्या मेरे दिल में लगी आग की एक चिंगारी भी उसके दिल तक नहीं पहुंची होगी क्या? जमाना, समाज, रस्मो रिवाज मेरा सब लूट के ले गए। मैं भूल गई थी हवेली के मकीनों से बहुत जायज नहीं मेरे लिए। हवेली वालों के दिल पत्थर के थे, उन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं था कि कोई कितनी तकलीफ में आ गया है उनकी इस हरकत से। बस बासिम की माँ थी जो इस हवेली की बाकी औरतों से अलग थी, वगरना यहाँ के मकीन अपने सिवा किसी को इंसान समझते ही नहीं थे। उनके नज़दीक वहाँ के लोगों की हैसियत कीड़े मकोड़ों की जैसी थी। मुझे तो समझ नहीं आता था कि लोग क्यों इनका हुक्म मानते हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो जाते। असल में बहुत ही बागी तबीयत की थी मैं, और अम्मा बहुत खौफजदा रहती थी कि कहीं मैं अपनी इस आदत से कभी नुकसान ना उठा लूं। मगर मैं अपनी इस आदत को बदल नहीं सकती थी, क्योंकि मैं कभी नाइंसाफ़ी और गलत बात बर्दाश्त नहीं करती थी। मैं अब जब के करीबी स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो भी रास्ता बदल कर ही जाती थी। मैं नहीं चाहती थी कि हवेली की औरतें मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाएं। मैं नहीं चाहती थी कि बासिम के कानों में कोई ऐसी बात पड़े जिससे वो मुझसे बदगुमां हो जाए, इसलिए मैं हर मुमकिन एहतियात कर रही थी। जिंदगी बहुत ही अजीब हो गई थी। एक खाली पंसा उतर आया था रगोपे में। इन्हीं बेकैफ दिनों में एकदम से बहार तब आई जब शहर से खाला जान अपने बच्चों के साथ रहने हमारे घर आई। मेरी खाला की उम्र ज़्यादा नहीं थी, उनकी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। उनकी 2 बेटियां थीं, दोनों जुड़वा थीं और 3 साल की थीं। खाला बहुत अरसे बाद हमारे घर आई थीं। अपनी शादी के बाद वो शहर शिफ्ट हो गई थीं और फिर यहाँ 1-2 बार ही आई थीं। मेरी इनसे खूब बनती थी, मुझे वो बहुत पसंद थी। मैं इन दिनों बहुत उलझी उदास सी थी, मगर उनके आने से मैं एकदम खुश हो गई थी। सब भूल भाल कर उनके साथ अच्छा वक्त गुजारने लगी थी। इन्हीं दिनों एक दिन हवेली की मुलाजमा आई और उसने कहा कि आपको बड़ी बीबी बुला रही हैं। बासिम की अम्मा के बुलावे का सुनकर मैं जाने को राजी हो गई, क्योंकि उनसे मुझे कोई गिला नहीं था। मैं अम्मा को बताकर मुलाजमा के साथ ही हवेली की तरफ चल दी। हम हवेली में पहुंचे तो खिलाफे मामूल वहाँ काफ़ी हलचल थी। मैंने मुलाजमा से पूछा कि खैरियत है क्या, कोई आया हुआ है? तो उसने कहा, हाँ, बड़े चौधरी के भतीजे आए हुए हैं जो बाहर पढ़ने गए थे। इसके बताने पर मुझे याद आया कि बासिम का एक कज़न फुरकान भी था जो बाहर पढ़ाई के सिलसिले में गया हुआ था। इसके माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए थे। वो हवेली में ही अपनी पुप्पो के हाथों में पला बड़ा था। अरसा दराज से बाहर मुल्क में पढ़ने गया था और अब बिलाखिर लौट आया था। वो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा था। इसकी आदतें भी हवेली के दीगर मर्दों की तरह ही थी। हर बुरी आदत उसके अंदर पाई जाती थी और अब तो आज़ाद माहौल में रह कर आया था, अब तो और भी बिगड़ चुका होगा। मैं ये सब सोचते हुए हवेली के जनान खाने की तरफ जा रही थी। तभी मुझे अपनी पुश्त पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई, तो मैंने चौंक कर फौरन पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। शायद मेरा वहम था। तभी मैं सर झटक कर आगे बढ़ गई। राहदारी से हटते हुए हम सीधे हाथ पर बनी कितार में पहले नंबर पर बने कमरे के सामने आकर ठहर गए। ये बासिम की माँ का कमरा था। मुलाजमा ने दरवाज़ा बजाकर उन्हें इत्तला दी और अंदर आने की इजाज़त मांगी तो मैं अंदर चली आई। वो सामने ही तख्त पर बैठी थी। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि आओ बैठो। मैं उनसे मिलकर सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। उन्होंने मुलाजमा को तवाज़ा का इशारा किया तो मैंने मना कर दिया।
और उनसे पूछने लगी کہ خیریت، آپ نے مجھے یوں اچانک بلایا؟ تو وہ بولی ہاں ہاں خیریت ہے، تم اتنے دن سے کہاں غائب تھی، مجھے کہیں دکھی ہی نہیں۔ نورا نے بتایا کہ تم حویلی بھی نہیں آئی، کیا ہوا، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ تم تو میری بیٹی کی طرح ہو، مجھے بہت عزیز بھی ہو، مجھ سے کوئی ناراضگی ہے کیا؟ ان کی بات سن کر اور فکر مند انداز دیکھ کر میں نے کہا نہیں نہیں، بس اسکول میں مصروف ہوتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا باسم شہر گیا تھا تو اس سے میں نے کچھ کپڑے منگوائے تھے، تمہارے لیے بھی الگ سے منگوائے تھے، دیکھو اگر تمہیں پسند نہ آئے تو دوسرے لے لیں گے۔ پھر انہوں نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ مجھے کپڑے دکھانے لگی۔ وہ بہت ہی خوبصورت سوٹ تھے، بہت ہی پیارے رنگوں میں رنگے ہوئے اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن سے سجے ہوئے۔ انہیں دیکھ کر تو آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ میں نے دھیرے سے ان پہ ہاتھ پھیرا تو یوں لگا جیسے مخمل میرے ہاتھ کے نیچے آ گیا ہو۔ میری اتنی پسندیدگی دیکھ کر وہ مسکرا دیں اور بولی مجھے پتا تھا تمہیں یہ بہت پسند آئیں گے، یہ تم پر بہت جچیں گے، اپنی اماں سے کہنا بہت خوبصورت کپڑے سی کر دے گی وہ تمہیں۔ میں نے ان کی بات پر کچھ دیر تو انہیں یوں ہی دیکھا، پھر بولی کہ نہیں بڑی بی بی، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، آپ کی محبت اور خیال کافی ہے میرے لیے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں بالکل بھی۔ میری بات سن کر وہ ناراضگی سے بولیں کہ تم میرا تحفہ ٹھکرا کر میرا دل توڑ رہی ہو، بہت چاہت سے منگوایا تھا میں نے یہ تمہارے لیے۔ اور پھر میرے نہ کرنے کے باوجود انہوں نے وہ سوٹ پیک کروا دیے اور مجھے دیکھ کر ہی دم لیا۔ ان کا شکریہ ادا کر کے میں جب وہاں سے نکل کر بیرونی حصے کی طرف بڑھ رہی تھی تو سامنے سے ہی باسم آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم رک گئی، وہ بھی مجھے دیکھ چکا تھا، اب فرار کی کوئی راہ باقی نہیں بچی تھی۔ میں ہمت کر کے اور جی کڑا کر کے اس کی سائڈ سے سر جھکا کر گزرنے ہی لگی تھی کہ اس نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میرے قدم بے ساختہ تھم سے گئے، میں بنا ایک لفظ کہے نظریں زمین پر گاڑے چپ چاپ کھڑی اس کے کچھ بولنے کی منتظر تھی۔ اس لمحے مجھے ادراک ہوا کہ جب محبوب سامنے ہو تو آس پاس کی ساری آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں، گویا دنیا ہی خاموش ہو جاتی ہے، سماعتیں صرف ایک انسان کو سننے کو بےتاب ہو جاتی ہیں۔ میں بھی اس وقت اسی کیفیت سے گزر رہی تھی، مہربا لب اس کے بولنے کی منتظر، گویا زمان و مقام میرے لیے تھم سے گئے تھے، ہر چیز سلو موشن میں ہو رہی تھی۔ تھوڑے سے انتظار کے بعد اس کی رس گھولتی آواز میرے کانوں سے ٹکرا کر میرے دل کو سراب کر گئی تھی۔ کیا تمہیں سوٹ پسند آئے؟ اس نے بس اتنا سا تو سوال کیا تھا، مگر مجھے اس کا جواب دیتے صدیاں لگ گئی تھیں۔ میں نے اس کے سوال پر جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ بھی میری طرف اسی پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں کوسے قزاں کے کئی رنگ جھلملا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے جھلتی شدتیں دیکھ کر میں گھبرا گئی اور اسے یک لفظی جواب دیتے فوراً سے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس کی نگاہوں کی تاب لانا بہت مشکل تھا میرے لیے۔ اس کی بولتی آنکھوں میں چھپا پیام آج پہلی بار میں نے پڑھا تھا۔ اس پل تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، پر اب جب سمجھ آئی تھی تو دل تھام بیٹھی تھی۔ دل کی غیر ہوتی حالت مجھے کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میں نے محبت کی جھلک دیکھی تھی، اس کی آنکھوں میں محبوب دیکھ لینے کا سرور تھا۔ میں تو خود اس راہ کی راہی تھی، تو کیوں کرنا اس کی آنکھوں کی دہلیز پر اترتے ان جذبوں کی آنچ کو نہ محسوس کر پاتی۔ میں اکیلی نہیں رہی تھی اب اس راہ پر، وہ بھی میرا ہمسفر ہو گیا تھا، یعنی سفر اب لمبا تھکا دینے والا اور مزید مشکل ہو چکا تھا، مگر جسے چاہا اس کے دل میں بھی میرے لیے چاہت تھی، اور بس یہی وہ بات تھی جو ہمت دیتی تھی۔ اب میں پھر سے بہت خوش رہنے لگی تھی۔ میں نے اماں کو وہ کپڑے سینے کو دے دیے۔ آج کل ہر وقت بلا وجہ ہی میرے ہونٹوں پر مسکان بکھری رہتی تھی۔ خالہ کے ساتھ میں گاؤں میں کسی سے ملنے جاتی تو راستے میں کبھی کبھار باسم سے ٹکراؤ ہو جاتا، مگر بات چیت نہیں ہو پاتی تھی کیونکہ وہ اکثر ہی کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا تھا۔ مگر محبت میں بے چین دل کے لیے تو دیدار یار ہی کافی تھا اس وقت۔ خالہ کی بہت سی دوستیں یہاں پر رہتی تھیں، سب شادی شدہ اور بال بچوں والی تھیں، مگر اپنی دوستی کو نہیں بھولی تھیں۔ ایک دن میں خالہ کے ساتھ ہی ان کی کسی دوست کے ہاں جا رہی تھی کہ تبھی مجھے باسم دکھا۔ آج وہ اکیلا بیٹھا تھا، اس نے بھی شاید مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ آپ جائیں، میں کچھ دیر میں آتی ہوں، اور پھر خالہ کے جاتے ہی میں فوراً سے اس کچے مکان کے باہر بنی مٹی کے ڈھیر کی طرف بڑھ گئی جس کے پاس ہی وہ کھڑا تھا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ میں قریب پہنچی تو بولا،
लड़की इस भरी दोपहर में गदगड़ियां लगाती फिर रही हो, घर पर टिक कर क्यों नहीं बैठ जाती हो? मैं रोज देखता हूँ कि तुम कभी कहाँ जा रही होती हो तो कभी कहाँ। मैंने उसकी बात सुनकर दिलचस्पी से उसे देखते कहा, तो क्या तुम मुझे रोज देखते हो? मेरी बात पर बेसाख्ता उसके मुंह से हाँ निकला, मगर जैसे ही मेरी शरारत उसे समझ आई तो हंस दिया। मैंने उसे यूं हंसते देखा तो मबहूत होके रह गई। वो कितना अच्छा लगता था यूं हंसते हुए। मुझे यूं साकित सा देखकर उसने मेरी तरफ झुक कर कहा कि क्या हुआ, यूं इतने गौर से क्यों देख रही हो? तो मैंने फौरन से पलकों की झालर गिरा दी और कहा, कुछ नहीं, बस वैसे ही। फिर मैं बिना एक भी लम्हा ज़ाया किए वहाँ से भाग निकली और वो पीछे मुझे आवाज़ देता रह गया। मैं खाला के पास गई तो वो बैठी अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। मैं भी उन्हीं के साथ बैठ गई और उनकी बातें सुनने लगी। खाला की दोस्त बता रही थी कि हमारे घर के करीब ही एक औरत रहती है। वो सिर्फ बेटे पैदा करती है, मगर एक अजीब सी बात है कि उसके बच्चे की पैदाइश के ठीक 2 दिन बाद ही उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है। अब तक 3 शादियां हो चुकी हैं उसकी। अब तो गांव वाले उसको न जाने क्या कहते हैं और अब कोई भी उससे शादी करने को बिल्कुल भी राजी नहीं। गांव के लोग उससे नफरत करने लगे हैं। बेचारी का कोई आगे पीछे भी नहीं जो इसका ख्याल रख सके। अकेले छोटे छोटे बच्चों को न जाने किस मुश्किल से पाल रही है वो। मैं भी इनकी बातें सुनकर उदास हो गई। जिंदगी हमारे लिए बाज दफा कितनी मुश्किल हो जाती है ना। अब इस औरत पर गांव वालों ने मनहूसियत का लेबल लगाकर उसका तमाशा बना छोड़ा था। उसे अकेला कर दिया गया। कोई भी उसे शादी पर रजामंद नहीं था। वो बेचारी बहुत मुश्किल से अपना और अपने बच्चों का खर्चा उठा रही थी और साथ ही खुद को हिवसज़दा निगाहों से बचा रही थी। इस दिन खाला के साथ वापस घर आते हुए मैं सारा रास्ता बस इस अनजान औरत के बारे में ही सोचती रही। घर पहुंचकर मैंने खाला से पूछा कि वो औरत कौन है, तो उन्होंने बताया कि वो वहीं पास में ही रहती है। यतीमी में पली बड़ी थी और उसके दूर के एक चचा ने बोझ की तरह सर से उतार दिया था और उसकी शादी एक जवारी से कर दी। बाद में बेटे की पैदाइश हुई और 2 दिन बाद उसका शौहर मौत का शिकार हो गया। वो बेवा होकर दोबारा चचा की दहलीज पर आ गई तो अब की बार चचा ने अपने आवारा बेटे से ब्याह दिया। जब गांव में कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था, मगर उसे भी एक बेटा होने के ठीक 2 दिन बाद वो भी मर गया। कहा जाता है कि वो नशे की ज्यादती की वजह से मर गया, मगर नाम इस मासूम औरत का लगा दिया गया। इत्तफाक से उसकी तीसरी शादी जिससे हुई थी वो पहले से ही बीमार था और वो भी कुछ अरसे बाद मर गया। तो उसके चचा ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया और गांव भर में ये झूठी खबर फैला दी कि ये मनहूस है और जो भी इससे शादी करता है वो औलाद की पैदाइश के बाद मर जाता है। और इसी तरह की और भी बहुत सी बातें फैलाकर उसे दरबदर कर दिया और उसकी सारी जायदाद हड़प ली। बस इसी वजह से उस दिन से वो बेचारी यूं बेयारो मददगार है, कोई इनका ख्याल नहीं रखता। खाला की बातें सुनकर मेरा दिल भर आया कि हम सब कितने बेहिस हैं। एक ही गांव में रहते हुए हमें इसके हालात का ख्याल नहीं। मैंने पक्का अज़म किया कि मैं उसकी मदद हर हाल में करूंगी, मगर कैसे? तभी मेरे दिमाग में एक नाम कूंदे की तरह लपका तो मैं फ़ौरन से हवेली की तरफ भागी। वहाँ मौजूद मुलाजिमा से मैंने पूछा कि बासिम कहाँ है, तो उसने बताया कि वो घोड़ों के अस्तबल में गया है। तो मैं उस तरफ भागती हुई गई। वो सामने ही खड़ा एक घोड़े के बालों पे हाथ फेर रहा था। मुझे देखकर मेरे करीब आ गया और बोला, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर मैंने उसे इस औरत के बारे में तफसील से बताकर उससे मदद का कहा तो उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो इस सारे मामले में मेरी मदद ज़रूर करेगा। उसका वादा सुनकर मैं मुस्कुरा उठी और वापसी के लिए मुड़ गई, क्योंकि शाम हो चुकी थी और मुझे घर पहुंचना था। मैं अभी चंद कदम ही आगे बढ़ी थी कि मुझे आज फिर अपनी पुश्त पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये बासिम की निगाहें नहीं थीं, कोई और था जो मुझे देख रहा था, वो भी आंच देती निगाहों से। मुझे समझ नहीं आया कि कौन हो सकता है। मैं उलझती हुई आगे बढ़ गई। घर पहुंचने तक मैं इस बात को भूल चुकी थी। अगले दिन मैं और बासिम इस औरत के घर गए। इसका घर बहुत खस्ता हाल था। हमने सबसे पहले इसका घर ठीक करवाने का सोचा। इसमें कुछ दिन लग गए। इसके बाद हमने उसके लिए एक मुस्तकिल रोज़गार ढूंढा। वो कपड़ों पर कढ़ाई की माहिर थी, तो बासिम ने अपने किसी दोस्त के तवस्सुत से उसे काम दिलवा दिया। यूँ इसकी आमदनी का एक मुस्तकिल जरिया बन गया। मैं ये काम करके बहुत खुश थी। हमारी वजह से किसी को खुशी मिले, इससे बढ़कर और क्या चाहिए होता है।
इन्हीं दिनों बासिम की पुप्पो ने फिर मुझे बुलवा भेजा। इस वक्त मैं बासिम के साथ ही बैठी थी। तभी वो भी हैरान हो गया कि वो क्यों बुला रही हैं। उसने कहा कि मैं भी साथ चलूँगा और वो मेरे साथ अंदर की तरफ चला गया। इसकी पुप्पो ने जब उसे साथ देखा तो वो गुस्से से पागल हो गई और उठकर मुझे मारने को लपकी, मगर बासिम ने बर वक्त उन्हें रोक दिया, जिस पर मुश्तिल होकर वो मुझ पर चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ें सुनकर बासिम की माँ भी वहाँ आ गई। वो वहाँ से मुझे अपने कमरे में ले गई और मुझे पानी पिलाकर मुझसे पूछने लगी कि अंदर क्या हो रहा था। तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी और ये भी कि एक बार पहले भी वो ऐसा कर चुकी हैं। बासिम भी वहीं मौजूद था। ये सब सुनकर वो शदीद गुस्से में आ गया। उस दिन मैं जब हवेली से घर की तरफ जा रही थी तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा। मैंने एकदम चीख मारी। फिर मेरी नज़र सामने खड़े शख्स पर पड़ी तो मेरे तो हवास ही मुंजमद हो गए। वो फुरकान था। उसने अपनी कमीनी हंसी हंसते हुए कहा कि क्या हुआ, वैसे तो बासिम के साथ हर वक्त मज़े करती रहती हो, तो मेरे हाथ पकड़ने पर चला क्यों रही हो। उसकी इतनी घटिया बात पर बेसाख्ता मेरा हाथ उठ गया उस पर, जिस पर तैश में आकर वो मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। मैं उसकी गिरफ्त में बेबसी से फड़फड़ा रही थी और उससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तभी कोई वहाँ पर आया और उसे ज़ोर से मुक्का मारा। वो दूर जा गिरा। मैंने सर उठाकर देखा तो वो बासिम था, जो आंखों में सख्त गुस्सा किए फुरकान को घूर रहा था। फिर मेरे सर पर दुपट्टा ठीक करके मुझे अपने साथ घर छोड़कर आया। कई दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, ना ही बासिम का कुछ अता पता था। मैंने सुना था कि उसकी पुप्पो ने अपनी बेटी की मंगनी उससे करने का ऐलान किया था और इस वजह से बासिम लड़कर शहर चला गया था। मेरा कहीं आने जाने को दिल नहीं करता था। वो नहीं था तो यूं लगता था कि गोया सारा गांव वीरान पड़ गया हो। अजीब से दिन थे वो। इन्हीं दिनों में मुझे सौरत ने बुलवाया, जिसकी मैंने और बासिम ने मदद की थी। मेरा बाहर जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं था, मगर मजबूरी थी, इसलिए जाना पड़ा। मैं वहाँ गई तो वो बैठी रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि कल शाम गांव के मर्द इज्तिमाई तौर पर मेरे घर मुझसे मिलने आए थे और उनमें से एक हवेली का लड़का फुरकान भी था। वो सब मुझे परेशान कर रहे थे। इन सबको वही लड़का अपने साथ यहाँ लाया था। आप बासिम को कहो कि मेरी मदद करें, वो लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। इसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई और बासिम से राब्ते का सोचने लगी। तभी मुझे बड़ी बीबी का ख्याल आया तो मैं दोपहर के वक्त हवेली चली गई और बड़ी बीबी के कमरे में जाकर उन्हें सारी बात बताकर कहा कि बासिम से मेरी बात करवा दे। मैं जानती थी कि वो उनसे ज़रूर राब्ते में होगा। उन्होंने उसे फ़ोन मिलाकर मुझे थमा दिया। मैंने उसे सब कुछ बताया और जल्द गांव आने को कहा तो उसने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर अगली शाम बासिम गांव आ गया। सबसे पहले वो इस औरत के पास गया और फिर फुरकान के पास। मैं नहीं जानती कि उसने क्या किया और अपने घर वालों से क्या कहा, मगर उसने फुरकान को दूसरे गांव इसके मामू के यहाँ भिजवा दिया। इसके चले जाने से हमारी जिंदगियों में काफ़ी सुकून आ गया था। एक पुरसकून सी शाम में बासिम के साथ नदी किनारे में बैठी थी। तभी मैंने उसकी तरफ रुख मोड़कर कहा कि सुना है कि तुम्हारी मंगनी हो रही है। ये कहते हुए मेरे दिल की क्या हालत थी ये मैं ही जानती थी। कुछ देर वो मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव देखता रहा, फिर बोला हाँ हो तो रही है। मुझे लगा मेरा दिल डूबने को है। इसकी बात पर मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मेरी गैर होती हालत देखकर वो भी बौखला गया और बोला, पागल, ज़रा सा भी मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं किसी और से कैसे शादी कर सकता हूँ, जबकि मेरे दिल में तुम हो। मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम फिक्र मत करो, हवेली वालों को मैं मना लूँगा। इसका वादा सुनकर मैं हल्की फुल्की हो गई और पानी में पाँव डालकर उसके साथ मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब बुनने लगी। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।